मोहम्मद सर। जी रिंकू मैम कंटिन्यू कीजिए। जी जी मिल गया मुझको, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैम ओके। सॉरी मेरा इंटरनेट जरा ये हो गया था, पावर कट हो गया इसलिए। ओके ठीक है, सो वी आर बैक। ओके, ये रहा, वी वर डिस्कसिंग कि ऊपर क्रस्ट है, ओके, उसके नीचे क्रस्ट, ये डिस्कस्ड कि सियाल एंड सीमा, विद इन द क्रस्ट सियाल एंड सीमा में जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज कॉन्ड्राड, ओके, वो कॉन्ड्राड डिसकंटिन्यूटी है। फिर उसके बाद जो क्रस्ट एंड मैंटल में डिसकंटिन्यूटी मिलती है आपको, दैट इज कॉल्ड एज मोहोस डिसकंटिन्यूटी, ओके। मोरोविच एक नाम था साइंटिस्ट का, उसके पीछे उसको मोहोस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ओके। सो मोहोस डिसकंटिन्यूटी है। And then upper mantle and lower mantle में जो है that is called as repeti, okay. Then low mantle and core में जो discontinuity है that is called as Gutenberg, and then outer core and inner core में जो discontinuity होती है that is called as lemon, okay. The question was कि crust and mantle में जो discontinuity है उसको क्या कहेंगे, तो that discontinuity is called as mohus, okay, mohus discontinuity कहेंगे उसको। So your answer is going to be mohus, all right, this is your answer, A, ये आपका आंसर होगा, ओके। लुक एट, कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोल्ड माउंटेन्स हमने किए नहीं है, सो वी कैन नॉट कंसीडर द क्वेश्चन, ओके, बेस्ड ऑन इट। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, ओके, ये हमने कवर किया है। Third question says, which of the following statements concerning the crust of the earth is correct? Okay, we are just talking about the crust of the earth. Now we have to consider all facts related to it. Okay, first statement, Sial makes up the oceanic crust, Sima makes up the continental crust. Okay, statement wise consider करते हैं। Is Sial the oceanic crust and Seema the continental crust? No, it's just the opposite. हम Sial जो होता है that is the continental crust and Seema जो है that is the oceanic crust. Okay, Sial is silica plus aluminium and that makes up the continental crust, whereas Seema is silica and magnesium and that makes up the oceanic crust. तो first statement तो गलत है अपना, that cannot be right. Okay, so we'll just say no to it. Okay, ये नहीं है, this won't do. Okay, then look at question statement B. Lithosphere comprises of the crust and the asthenosphere. Okay. Lithosphere हमने क्या बोला था कि ऊपर एक crust होता है. Okay. There is a crust up here. All right. And then उसके बाद you have the mantle part of it. अब इस mantle को भी हम कैसा हिस्सा बनाते हैं कि पहले uppermost mantle जो होता है ना, that is a solid mantle. Okay. ये uppermost solid mantle है. फिर इसके नीचे एक asthenosphere आता है, इसी mantle में एक asthenosphere आता है, एंड देन उसके बाद आपको अपर लोअर मतलब नहीं क्या, देन उसके बाद आपको पूरा ये मैंटल मिल जाएगा। दिस इज द होल मैंटल थिंग ओनली, बट वो जो सेमी मोल्टन स्टेज में है वो मैंटल ये है, वेरएज उसका अपर मोस्ट पार्ट सॉलिड है एंड नीचे का पार्ट थोड़ा सा मोल्टन है। ओके, सो इस पूरे ये जो पूरा क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल है ना, तो इन दोनों का हम लिथोस्फीयर बुलाते हैं। दोस टू टुगेदर आर कॉल्ड एज द लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर सॉलिड है, पीपल प्लीज रिमेंबर, उसके ऊपर पानी हो लैंड हो, लेकिन वो जो क्रस्ट का पार्ट है दैट इज सॉलिड। ओके, द uppermost solid mantle and the crust together are solid together. Okay, and that makes up the lithosphere. And that lithospheric plates, वो जो अलग अलग lithospheric plates है, वो उस asthenosphere के ऊपर float करते हैं। Okay, they float upon the asthenosphere. So lithosphere is not made up of the crust and asthenosphere. Lithosphere is floating on the asthenosphere. Okay, lithosphere is made up of crust plus uppermost solid mantle. Okay, रट लीजिए इसको क्योंकि यूपीएससी हमेशा आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड अपरमोस्ट सॉलिड मेंटल। ओके, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ऑलराइट, कंसीडर द थर्ड स्टेटमेंट, Sial and Seema have different compositions but equal densities. Can we say that? Sial and Seema की compositions अलग है, वो तो नाम से ही पता चलता है। Sial is silica and aluminium, Seema is silica and magnesium. Okay, तो compositions तो different है, chemical composition तो different है उसका, पर डेंसिटी इक्वल है। डेंसिटी इक्वल कैसे होगी? डेंसिटी भी तो डिफरेंट है ना। डेंसिटी काहे से बनती है? डेंसिटी मटेरियल से बनती है। तो अगर आपके मटेरियल्स अलग है तो उनके मटेरियल्स के डेंसिटीज अलग है, तो कॉम्पोजिट जो मिलेगा आपको उसका भी तो डेंसिटी अलग है। तो क्लियरली वी आर सेइंग कि Sial एंड Seema हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशंस बट दे एंड दैट इज व्हाई दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज आल्सो। ओके, अगर आपको ये लॉजिक नहीं यूज करना है तो भी हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि सियाल का जो एवरेज डेंसिटी है वो, एक सेकेंड ना, वील गो दैट।
and I'll give you the reference there. Cl का जो average density है that is 2.7 gram per centimeter cube, okay, and सीमा का जो average density है that is 3 gram per centimeter cube, okay. ये normal densities है, तो दोनों के densities अलग है, clearly अलग है, okay. We can't go by the statement कि दोनों के compositions तो same है लेकिन densities अलग है, ये नहीं होगा, okay. तो ये तीनों statements गलत है, all these three statements are wrong, okay. ये तीनों statements गलत है. देन लेट्स कम टू द, अभी क्लियरली आपको लॉजिक से पता है कि चौथा ही सही होना है, लेकिन वील ट्राई टू फिगर आउट हाउ दैट इज करेक्ट ऑल्सो. सियाल इज थिकर देन सीमा. इज सियाल थिकर देन सीमा? यस. सियाल का एवरेज थिकनेस कितना होता है? we go here. सियाल का एवरेज थिकनेस इज 30 किलोमीटर्स, ओके. सियाल का एवरेज थिकनेस 30 किलोमीटर्स है, मेरा सीमा का जो एवरेज थिकनेस है दैट इज 5 किलोमीटर्स, ओके. 5 किलोमीटर्स का एवरेज थिकनेस मिलेगा आपको एंड इन सीमा, वेयर सियाल का एवरेज थिकनेस इज क्लोज टू 30 किलोमीटर्स, ओके. ये भी याद रखिएगा, यूपीएससी हैज वंस आस्क्ड यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, but fine, we won't get into that right now. All right, ठीक है. Is this cool people? So just statement, ये जो D वाला statement है बस वो सही है कि Cial is thicker than Seema. All other statements are wrong. Okay, and try to understand. कभी-कभी statements थोड़े से confusing manner में present किए जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि what is being really asked and which statement is correct or incorrect or whatever. Okay, consider the, yeah, fourth question भी consider कर सकते हैं. Density of earth shows an increasing trend from the crust to the core. Okay, तो what is being said to you is, ये अगर earth होगा, okay, ये earth का एक section है, तो we are saying crust से लेके core तक earth का जो density है वो increasing trend बताता है, मतलब जैसे जैसे आप core की तरफ जाते हो density बढ़ते जाता है, okay. That is what the statement says. We believe the statement is correct, right? The assertion is absolutely correct. Statement जो कहा गया है, first statement, वो बिल्कुल सही है कि density of earth shows an increasing trend from the crust to the core. ट्रस्ट का डेंसिटी कितना बताया था? सीआल का 2.7 एंड इसका 3, सो दैट इज द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट. सीमा का डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देन उसके बाद जब आप मैंटल में जाते हो तो डेंसिटी कुछ 3 पॉइंट समथिंग, 3.4 वगैरह ऐसा कुछ डेंसिटी है मैंटल का, ओके. हियर वी आर, we'll go to mantle. 3.4 is the average density of the mantle, okay. देन उसके बाद जब आप कोर एंड मैंटल की बाउंड्री पे हो तो वहां पे डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जैसे ही आप इनर कोर तक पहुंचते हो तो डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, ओके. व्हेन यू गेट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द डेंसिटी इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो क्लियरली द डेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज यू गो फ्रॉम द क्रस्ट टुवर्ड्स द कोर, ओके. ये तो क्लियर है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही बोलेंगे, असर्शन सही है अपना. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द रीजन इज. रीजन सही है क्या वो देखते हैं, ओके. रीजन कहता है, the reason is because the reason that that the question is offering for the increasing density to from the crust to the core is कि inner core solid है and outer core liquid है. statement in itself सही है, okay. ये सही है कि inner core solid है and outer core liquid है, okay. ये statement सही है. now we are trying to verify कि क्या ये इस वजह से, is this the fact जिसकी वजह से the density of earth shows an increasing trend? No. The problem is उल्टा है ये, because the density is increasing, because inner core की डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए वो सॉलिड हो गया है एंड आउटर कोर थोड़ा लिक्विड रह गया, ओके. दैट इज द प्रॉब्लम. उल्टा है ये, ओके. इनफैक्ट वो जो डेंसिटी है उसका वो जो स्टेटमेंट है वो प्रूव करता है इस फैक्ट को कि हाँ देन ऑब्वियसली इनर कोर सॉलिड होगा एंड आउटर कोर थोड़ा सा लिक्विड हो सकता है, ओके. समझा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो even though both statements are correct, the reason is not an explanation for the assertion. Okay, please understand what is being asked. ये बिल्कुल उल्टा पूछा जा रहा है आपसे कि आपको the reason why the inner core is solid is because वहां पर बहुत heavy material है, heavy minerals exist करते हैं जिसकी वजह से वहां की density बहुत ज्यादा है, okay. So because the density is more, because the at the center of the earth you find the highest density, hence the inner core has solidified, okay. Despite the great pressure, despite the great amount of heat, because वो इतना dense है इसलिए वो solidify हो गया, okay. This is the reason why the inner core is solid. उल्टा नहीं है कि inner core solid है इसलिए density increase कर रही है. That is just an observation, people, okay. वो सिर्फ एक observation है, nothing much, okay. So we say that the reason is correct, the assertion is correct, but that is not, sorry, ये नहीं, that is not the correct explanation, okay. वो correct explanation नहीं है ऐसे हम कह रहे हैं, okay. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation for A, okay. Is this understood, people? All right, moving forward. um, Give me a moment.
Okay. We'll go forward with this from here. हम next statement consider, ये question number 5 नहीं consider कर सकते, हमने अब तक geomorphic processes नहीं consider किए. Continental drift theory पर कर सकते हैं question consider. Okay, these are the various statements given to you regarding continental drift theory. आपको बताना है इसमें से incorrect statement कौन सा है. Okay. Statement 1 says the theory was proposed by Arthur Holmes in 1912. Statement 2 says the supercontinent called as Pangaea. Okay, the supercontinent called as Pangaea and the superocean was called as Panthalsa. Okay, then there is of course there is statement C which says the sea line between Laurasia and Gondwana land was called as the Sea of Tethys. Okay, and question number D, statement D says the matching shorelines of South America and Africa is presented as evidence to support the theory. Okay, all right, let's go with statement D. The matching shorelines of South America and Africa are presented as evidence to support the theory. Yes, हमने देखा था कि वो साउथ अमेरिका का ब्राजील का जो शोल्डर है वो बिल्कुल जाके फिट करता है वो अफ्रीका के डेंट में. सो वी हैड सेड कि हाँ ये तो सही है, ये तो एविडेंस था उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कि वो लैंड पहले साथ था, टूट गया, दूर हो गया, इसलिए वो जिक्सॉ पजल की तरह फिट करता है. ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया बुलाते थे एंड सुपर ओशन को पेंथाल्सा बुलाते थे, ये भी सही है. ओके, फिर वो जब टूट गया, पैंजिया टूट गया, तो उसके दो हिस्से हो गए, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, और उन दोनों के बीच में जो सी थी दैट वाज कॉल्ड एज सी ऑफ डेथिस. दैट इज आल्सो करेक्ट. This first statement is a problem. 1912 is good, that is fine, but the theory was proposed by Wegener. Okay, Alfred Wegener ने वो theory propose की थी. Arthur Holmes just came up with the convectional current theory. Okay, and that he came up in the 30s. All right. So Arthur Holmes had proposed the convectional current theory. Wegener had proposed the continental drift theory. Okay, this is a very, when I had read through the question for the first time, even though I had made it, even I had thought ki what is wrong in this before I fixated on Arthur Holmes. Okay, I picked up on Arthur Holmes. So you have to, you look for facts. You don't look for the small detail. So be careful of this also. Okay, this is the wrong answer. ये वाला जो है A, that is the incorrect statement. Okay, the theory was proposed by Alfred Wegener. Please remember that. All right. This question number 7 can also be considered. ये हमने पढ़ा है. Oceanic floor is continuously being created and destroyed. Statement 1 says कि oceanic floor continuously create होते रहता है और continuously destroy भी होते रहता है. Statement 2 says newer oceanic crust is always found towards the seashore closer to the land. Okay. Statement 1 consider करते हैं. Oceanic floor is continuously being created and destroyed. Yes, that is the sea floor spreading theory. We are saying कि usually mid oceanic ridge या ऐसा कुछ होता है, crest होता है, तो वहां पर what happens is कि the lava comes up, okay, and then starts to spread around. Okay, वो lava spread करता है and then जितना ज्यादा lava का आउटपोरिंग होता है उतना ज्यादा वो लावा स्प्रेड करते रहता है, उतना वो सी फ्लोर स्प्रेड होते रहता है. ओके, टुवर्ड्स द साइड्स. एंड देन उसके बाद वही सी फ्लोर जब यू मीट अनदर प्लेट एंड ऑल, तो वही सी फ्लोर कंटिन्यूसली कंज्यूम भी होते रहता है. ओके, सो दिस इज अ करेक्ट थ्योरी दैट ओशियनिक फ्लोर इज कंटिन्यूसली बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड. ओके, सो वील गो विद दिस कि ये स्टेटमेंट सही है. Let's look at statement 2. Newer oceanic crust is always found near the seashore. No, usually if this is the entire range of the sea and this is the land part of it, okay, अगर ये sea है and ये land है, तो usually अब अटलांटिक ओशन को देख लीजिएगा कि उसका जो मिड ओशियनिक crust है तो वहां से वो मिड ओशियनिक लावा का आउटपोरिंग मिलता है. ओके, द लावा कीप स्प्रेडिंग. हाँ, वो लावा स्प्रेड होते रहता है एंड देन वो रिज है ना, तो वहां पे वो थोड़ा सा ऐसा ब्रेक हो गया है बिकॉज द प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. So you will see there is a deep and a smaller, like narrow break, but there is a proper break. Okay, and then the lava keeps spreading in both directions, and that happens somewhere in the middle of the ocean usually, not near the land. Okay, अगर देर आर वेरी रेयर केसेस इन विच आपको ये मिलेगा. अगर मोस्टली आपको ओशियनिक क्रस्ट मिलना है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आपको हमेशा समुद्र के अंदर मिलेगा या समुद्र के बाहर, मतलब वेरी क्लोज टू द लैंड नियर द सी शोर वगैरह मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑन प्लेट्स का डिवीजन कैसे हो गया है. ओके, लेकिन सबसे फेमस अगर आप रिच कंसिडर करें, ओशन फ्लोर कंसिडर करें, तो वो मिड अटलांटिक रिज है, वो तो ओशन के बीचों बीच है. ओके, इट इज बैंग इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन वेयर द प्लेट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, and you will see this new oceanic floor continuously being formed. Okay,
ठीक है. सो यू गॉट टू रिमेम्बर कि यू कैन नॉट, वो जब ऐसे ऑलवेज नेवर ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो यू गॉट टू बी केयरफुल देयर. ओके, यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल. यू डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद द फैक्ट. ओके, ठीक है. तो even the possibility of the new oceanic crust always being near the seashore is slightly less. ठीक है. So we'll say the first statement is correct. Okay, and the second statement isn't. Okay, second statement correct नहीं बोल सकते, तो हम we'll just go with this answer. Only statement A is correct. Okay, only statement 1 is correct. We'll go with that. ठीक है. Move on to question number 8. Okay, question number 8 देखते हैं. Which of the following is not a tectonic minor माइनर? आपको बताना है इसमें से कौन सा माइनर. आपके प्लेट्स आर अरेबियन, इंडियन नहीं है, सॉरी, मतलब आपको मेजर बताना है. अरेबियन, इंडियन, अफ्रीकन एंड कैरिबियन. ओके, तो आपके पास 4 प्लेट्स है. अरेबियन, अभी क्या हो गया यार, गाइस आर यू एबल टू हियर मी? आपके पास 4 प्लेट्स है. अरेबियन, इंडियन, अफ्रीकन एंड कैरिबियन. ओके, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी प्लेट जो है वो मेजर है. इसमें से कौन सा मेजर प्लेट है. हमने ये स्टडी किया था. हमने 7 मेजर प्लेट्स पॉइंट आउट किए थे. एक एंटार्क्टिक, देन एक नॉर्थ अमेरिकन, एक साउथ अमेरिकन, देन उसके बाद हमने बोला एक पैसिफिक. ओके, देन वी वेंट टू द इंडो ऑस्ट्रेलियन, द अफ्रीकन एंड द यूरेशियन प्लेट्स. ओके, सो वी हैव कवर्ड दीज 7 मेजर प्लेट्स. अब इसमें से कौन सा मेजर है? अफ्रीकन. अफ्रीकन प्लेट जो है वो मेजर प्लेट है. बाकी अरेबियन, इंडियन, कैरिबियन, नास्का, कोकोस, हुआन दे फुका, ये सारे माइनर प्लेट्स है. ओके, दीज आर ऑल माइनर प्लेट्स दैट वी नो ऑफ. ठीक है. रिमेंबर पीपल, आपको ना सारे छोटे प्लेट्स याद रखने की जरूरत नहीं, उनका नंबर ज्यादा है. सारे मेजर याद रख लीजिएगा, एंड जो मेजर नहीं है वो ऑब्वियसली माइनर हो जाएगा. ओके, जस्ट रिमेंबर द 7 major ones. We'll go to the 7 major ones once again, so you don't have to worry about it. ये ये वाले आपके 7 मेजर प्लेट्स है. देख लीजिए, व्हाट डिड वी से, विच वर दीज प्लेट्स. सबसे बड़ा वाला, सबसे नीचे हमने अंटार्कटिक से शुरू किया था. Then we went on to this, okay, North American, South American, okay, ये कवर किया. Move towards North America, South America के लेफ्ट में क्या मिलता है? Pacific, okay, तो वो Pacific प्लेट कंसिडर किया हमने. ऑल राइट, ठीक है. Then we said चलो ठीक है, इंडिया को कंसिडर करते हैं. इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलियन बताई. वी सेड दैट इज वन प्लेट. ओके, देन देयर वाज ऑफ कोर्स द अफ्रीकन प्लेट. ओके, एंड देन उसके ऊपर सब सब इंडिया एंड अफ्रीका के ऊपर बैठा है यूरेशियन प्लेट. So we call it the Eurasian plate, and these make up your 7 plates. Okay, please remember, मैंने आपसे कल भी कहा था, इंडियन प्लेट को अगर आप अकेले by itself consider करो तो it's a minor plate, but if you consider it with the Australian plate, then you called it as the Indo-Australian plate. That becomes a major plate. Okay, लेकिन अरेबियन वगैरह जो है वो by itself छोटे छोटे प्लेट्स है. अरेबियन, फिलिपिनो वगैरह, these are smaller plates. इंडियन भी by itself consider करो तो small plate. Okay, minor plate. Alright, ठीक है. Next you go on to question number 9. Okay, question number 9 tectonic plates के बारे में बात कर रहे हैं. All right, so we'll look at this question, and the question says, first statement says हमको बताना है कि इसमें से कौन सा statement incorrect है. Okay, so there are 3 correct statements. We have to find out the one that is incorrect. Tectonic plates move over the fluid asthenosphere. Okay. Next statement says convergent plate boundaries are associated with the creation of new crust. Okay. Convergent plate boundaries are associated with creation of new crust. Divergent plate boundaries are associated with rifts and volcanic eruptions. Okay. And last statement says crust is neither created nor destroyed at transform plate boundaries. Okay. Now, this question is not just about the plates, it is mostly associated with plate boundaries. Okay, one statement is about plates, the rest are about plate boundaries. Okay, consider करते हैं. सबसे पहला वाला statement, tectonic plates move over the fluid asthenosphere. Yes, tectonic plates क्या होती है? Lithospheric plates होती है. Irregularly shaped, massive, really massive plates जो lithosphere का part है, lithosphere के हिस्से है, बड़े छोटे हिस्से है, and वो उस asthenosphere के ऊपर float करता है. Okay, it floats over the asthenosphere. फिर उस एस्थेनोस्फीयर या मेंटल में जो भी कन्वेक्शनल करंट सेटअप होते हैं, उसके बेसिस पे द प्लेट्स कैन आइदर ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहेंगे, और दे कैन बी ब्रॉट टुगेदर, जिसको हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बोलेंगे, या फिर दे विल सिंपली स्लाइड अलोंगसाइड ईच अदर, जिसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बुलाते हैं. ओके, ठीक है. सो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर द फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर इज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, ये स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला convergent plate boundaries are associated with the creation of new crust. Okay,
कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है, दो प्लेट्स जो है वो करीब आते हैं, ओके, दे कम टुगेदर बिकॉज नीचे के जो कन्वेक्शनल करंट्स है they are forcing them to move towards each other. Okay, so these two plates come together. Now what happens when these two plates come together? अब इससे ज्यादा तो आगे नहीं जा सकते ना, तो जो heavier या denser या older plate होता है वो नीचे चला जाता है, ओके, इट गोज बिलो द अदर प्लेट, एंड ये जो पोर्शन है जो नीचे सबडक्ट हो गया, द टेक्निकल वर्ड फॉर इट इज सबडक्ट होना, ओके, तो वो जो पोर्शन नीचे सबडक्ट हो गया है, दैट पोर्शन is destroyed because वो mantle में चला गया है, राइट, mantle is molten rock, तो वो molten rock उस क्रस्ट को खा जाता है, मेल्ट कर देता है, ओके, सो दैट वहां पर नया क्रस्ट, जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज होती है तो नया क्रस्ट नहीं बनता है, जो अवेलेबल क्रस्ट था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके, दैट इज ऑल्सो कंज्यूम्ड, क्रस्ट इज कंज्यूम्ड, उनको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं, वेरी फेमसली कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज आर कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव, हाँ, ओके, गुड, this that is okay then. For a moment, I thought I'm going to lose power again, and I'm going to lose you guys again all over again. Okay. ठीक है, is this understood people? Conversion plate boundaries are associated with the crust of new crust, associated with the creation of new crust. ये statement गलत है, okay? In fact, conversion plate boundaries में crust destroy हो जाता है. So those are destructive plate boundaries. Look at statement C. Divergent plate boundaries are associated with rifts and volcanic eruptions. What are divergent plate boundaries? Plates are being forced to move apart. Okay. When they move apart, clearly यहाँ पर एक break आता है, gap है ना, बीच में gap हो जाता है. Plates जब बढ़ रहे हैं, उनके बीच में एक gap आया है, narrow gap. Okay, and there is a, how to say, सिर्फ there is not just gap, ऐसे वो थोड़ा सा अच्छा खासा उसको rift बुलाते हैं. Okay, तो एक rift पड़ जाता है, gap होता है, तो वो रिफ्ट तो मिलते हैं आपको, ओके, वो जैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का रिफ्ट है वगैरह, ऐसा रिफ्ट मिलता है, एंड वहां से लावा आउटपोर होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन से डेफिनेटली एसोसिएटेड है, ओके, इनफैक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज आर एसोसिएटेड विद वोल्केनिक इरप्शंस एंड साइस्मिक एक्टिविटी, ये तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज में मोर ऑफन देन नॉट आपको वोल्केनिक इरप्शंस मिल ही जाते हैं, ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड लुक एट द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज. I don't talk in मित्रमंडळ. I beg your pardon. Okay, fine, no worries. Okay, I last don't talk statement in says कि मित्रमंडळ बोलते. विश्रांतवाडी. fine, if that is how you like it. मोहम्मद सर, there is a student here by the name of iPhone, और वो बीच बीच में से डिस्टर्ब करके बात कर रहे हैं. Thank you, sir. All right. Look at the last statement. This is neither created nor at the transform plate boundaries. Okay. So that is also true. Transform plate boundaries में क्या होता है कि the crust is both plates are simply moving alongside each other. Okay. The crust is दोनों plates जो होती है, they are simply moving alongside each other. वो ना तो they are neither coming together nor are they being forced to move apart. वो ऐसा motion नहीं है. The motion is simply alongside each other. Okay. तो वहां पे ना क्रस्ट क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है. हमने इसका फेमस ये वो सैन एंड्रियस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखा था, राइट, वी हैड सीन दैट यस्टरडे, हैडंट वी? तो उसमें हमने देखा था कि वो क्रस्ट ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी मच प्रोन टू seismic activity, volcanic problem, volcanic eruptions and all that. Okay, वहां पर भी आपको ये सब मिल जाता है, seismic activity a little more than necessary. See this one, this is what we had seen, and you people never fail to remind me that this is some sort of a video game, San Andreas GTA, I think, I suppose. So you people remember it this way, आप mnemonic ये याद रख लीजिएगा, लेकिन please remember कि this is a transform fault, and यहाँ पे plate boundaries जो है, so we are talking about the North American and the Pacific plate boundaries, तो ये दोनों are simply moving alongside each other. Okay, crust can neither be created nor be destroyed over here. All right, ठीक है. हमारा incorrect statement क्या था? Statement B. Statement B was the incorrect statement कि conversion plate boundaries actually destructive होते हैं, तो वहां पे नया crust नहीं create हो सकता है. ठीक है. All right, moving on to statement 10. The Indian plate is being subducted under the Eurasian plate. And statement 2 says, in the subduction zone, usually the denser or older crust of the earth is subducted. Okay.
All right, let's look at this. Question statement 1 says कि इंडियन प्लेट जो है that is being subducted under the यूरेशियन प्लेट. तो ये तो सही है कि जब अभी हमने हिमालयस कैसे बने हैं, फोल्ड माउंटेन्स है, बनने कैसे है, क्योंकि यू हैव टू प्लेट्स, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज है वो वहाँ पे. एक ऊपर यूरेशियन प्लेट है हमारे ऊपर, एंड नीचे से वो इंडियन प्लेट जाके उसको लाइक द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आर कोलाइडिंग. ओके, एंड उस चक्कर में क्या हो रहा है कि वहाँ का जो इंडियन प्लेट है दैट इज बीइंग सबडक्टेड अंडर द यूरेशियन प्लेट. And it is not just being subducted, we are वो जो यूजुअली सबडक्शन जोन में कैसा हो जाता है कि जो डेंसर या ओल्डर क्रस्ट होता है वही सबडक्ट होता है. ओके, तो डेंसर, ओल्डर, हेवियर जो भी होगा वैसा वाला क्रस्ट नीचे चला जाता है, एंड न्यूअर या फिर लाइटर क्रस्ट जो होगा वो ऊपर आ जाता है. ओके, ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज डन. हेलो बेकार रोशन की तोड़ है पर हेलो Okay, next is for नहीं यार, फिर ओरल मूवमेंट्स वगैरह नहीं, फिर आई डोंट थिंक दिस इज एनीथिंग दैट वी हैव डन सो फार. फिर ये सारे क्वेश्चंस बाकी के इस पे बेस्ड है. या we'll have to consider this later then. जब हम ये बाकी का सब कुछ कंसिडर करेंगे तो फिर उसके बाद we can look at those questions. Okay, ठीक है, चलेगा. मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम प्रॉपर टॉपिक कंसिडर करते हैं नेक्स्ट वाला. दिस इज बट वी आर डन देयर ऑलमोस्ट. मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट. ओके, वी आर गोइंग टू डू जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. जियो का मतलब होता है अर्थ. ओके, जियो मीनिंग अर्थ एंड मॉर्फ मीनिंग फॉर्म. ओके, जैसा अपीयरेंस, फॉर्म वगैरह वो जो होता है वो. तो जियोमॉर्फिक का मतलब अर्थ के ऊपर जो अर्थ का फॉर्म चेंज होता है ना, बदल जाता है, या अर्थ के लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो वाले प्रोसेसेस कंसिडर कर रहे हैं. okay? अब वो जो प्रोसेसेस है वो दो तरीके से बनते हैं. या तो उसका जो फोर्स है, द फोर्स विच ड्राइव्स दीज प्रोसेसेस, वो फोर्स या तो अर्थ के अंदर से आ सकता है तो उसको बुलाएंगे एंडोजेनिक, या फिर एक्सटर्नल टू द अर्थ हो सकता है, जैसे वेदर, क्लाइमेट वगैरह ऐसे, नहीं क्या, तो वैसा वाला फोर्स होगा तो उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक. ओके, ठीक है. एंडो मीनिंग फ्रॉम विद इन, एक्सो मीनिंग फ्रॉम आउटसाइड. ओके, तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के अंदर जो भी स्ट्रेसेस सेटअप हो जाता है ना, एंड देन अर्थ एनर्जी रिलीज करता है, तो उस प्रोसेस में जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं आपके, या बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ते हैं, तो दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस. ओके, वेयरएज जो एक्सोजेनिक होते हैं वो हमने स्कूल में पढ़े थे, वेदरिंग, इरोजन, यू नो ऑल दैट, डेन्यूडेशन वगैरह, ये सब कुछ पढ़ा था हमने. सो वी आर टॉकिंग ऑफ दोस. ओके, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे क्लाइमेट होता है, या फिर कोई इरोजनल डिपोजिशनल एजेंट्स है, लाइक वाटर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स. तो वी आर कंसिडरिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड उसकी वजह से अर्थ का सर्फेस जो बदल जाएगा, उस वो सारे प्रोसेसेस कंसिडर कर रहे हैं. ओके, दिस इज व्हाट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मीन. जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपका व्हाट डू यू से, द अर्थ्स लैंड, द अर्थ सर्फेस चेंजेस, अर्थ का सर्फेस चेंज हो जाता है, अर्थ के सर्फेस के ऊपर चेंजेस मिलते हैं आपको. यू जस्ट हैव टू, आप उसका क्लासिफिकेशन जो है वो आप इस बेसिस पे करते हो कि the force that caused the change, did it come from within the earth or does it come from outside the earth? Okay, that is all that we are considering. So अगर within the earth consider किया तो endogenic forces होंगे, एंडोजेनिक प्रोसेसेस होंगे. अगर आउटसाइड द अर्थ, एक्सटर्नल टू द अर्थ कंसिडर कर रहे हैं तो फिर वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होंगे. ओके, नाउ लेट्स कंसिडर एंडोजेनिक प्रोसेसेस. एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो होती है वो, उसमें आप दो डिविजन्स कर सकते हैं, स्लो मूवमेंट्स, सडन मूवमेंट्स. ओके, slow movements माने slow movements take a lot of time, and when I say a lot of time I'm saying millions of years. Okay, billions and millions of years. Look in Himalayas, mountains बने हैं. mountains इसलिए बने हैं क्योंकि यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट कोलाइड कर रहे हैं. ओके, एंड उसमें जो क्रस्ट होता है वो फोल्ड होता है. ओके, वो जो थोड़ा सा बिकॉज कोलिजन हो रही है तो जो क्रस्ट होता है वो फोल्ड हो जाता है. ओके, तो वो फोल्डिंग ऑफ द क्रस्ट की वजह से वहाँ माउंटेन्स बने हैं. बट वो माउंटेन्स बनने का प्रोसेस अभी भी चल रहा है. ओके, कुछ 50-60 इयर्स पहले बनना शुरू हो गया था, एंड इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. अभी भी उसका हाइट बढ़ ही रहा है क्योंकि द माउंटेन्स आर स्टिल बीइंग फॉर्म्ड. ओके, सो वी आर सेइंग कि ये स्लो मूवमेंट्स होती है, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम. लाइक माउंटेन ओरिजिनी तो भी कम से कम 50-60 इयर्स ले रहा है, कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन तो उससे भी ज्यादा टाइम लेता है. सो वी आर टॉकिंग ऑफ अ बिग बिग टाइम पीरियड. ओके, बहुत बड़ा टाइम स्पैन की बात कर रहे हैं हम लोग. So those are slow movements. Okay, उनको diastrophic movements भी बुलाते हैं. Another word for it is diastrophic movements. All right. अभी
सडन मूवमेंट्स माने वो जिसका हमको ना कोई अंदेशा होता है, वी हैव नो क्लू दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, और एंड वो जब हो जाता है तो दैट आल्सो हैपेंस विद इन अ स्पेस ऑफ अ वेरी शॉर्ट टाइम, ओके, अ फ्यू मिनट्स, अ फ्यू सेकंड्स, वी आर टॉकिंग ऑफ दैट, लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस। तो वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स के हमको प्रायर इंडिकेशंस कभी कभी मिलते हैं। अगर आप, वो जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, जो अर्थ का इंटीरियर वगैरह स्टडी करते हैं, तो उनको यूजुअली पता होता है कि फॉर एग्जांपल, इफ यू there they can expect a volcanic eruption when you know that the lava is already on the verge of coming out, gases बाहर आते हैं पहले कभी कभी from volcanoes, and then उसके बाद lava erupt करता है। So these movements कभी कभी आपको इंडिकेशन मिल जाता है। earthquakes कभी कभी आपको लगता है कि हाँ, पता है कि you can't predict as such कि earthquake होगा, लेकिन a few minutes before or something you might have an idea कि हाँ चलो ये इवेंट हो सकता है। सो वी आर सेइंग कि बिकॉज अर्थ की एनर्जी अगर आप मॉनिटर कर रहे हो तो देन यू माइट बी एबल टू प्रेडिक्ट दैट मूवमेंट, ओके। बट दीज आर वेरी सडन मूवमेंट्स, इसका आपको लाइक इट इज नॉट हैपनिंग ओवर पीरियड ऑफ इयर्स कि नहीं यार ये वोल्केनिक इरप्शन हो ही रहा है, कंटिन्यूसली हो ही, ऐसा नहीं होता है ये, ओके। अगर वोल्केनिक इरप्शन होता भी है, अगर यू नो दैट दिस इज एन एक्टिव वोल्केनो, ओके, एंड यहाँ पे इरप्शन होता है, डेफिनेटली होता है, so you're going to Hawaii, you go to Philippines or something like that, you know that volcano erupts, okay। तो वो इरप्शन भी आपको मे बी अ फ्यू आवर्स, अ फ्यू मिनट्स, या मे बी फॉर अ डे और टू, ऐसा कुछ हो रहा है वो इरप्शन, ओके, एंड देन वो इवेंट बंद हो जाता है, ओके। एक बार वो इरप्ट हो जाता है, देन द एपिसोड क्लोजेस, देन उसके बाद वापस नया एपिसोड की नए सिरे से इरप्शन हो रहा है या फिर नए सिरे से अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, ये एपिसोडिक होता है, ओके। यूजुअली ये जो स्लो मूवमेंट्स होती है वो ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अगर कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, से सपोज अपलिफ्ट हो रहा है, तो कॉन्टिनेंट अपलिफ्ट हो ही रहा है, इट इज राइजिंग 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 राइजिंग, इट इज राइजिंग वेरी स्लोली, लेकिन इट इज द मूवमेंट इज कंटिन्यूअस, ओके। वो एपिसोड नहीं है कि आज इतना राइज हो गया, फिर अभी कुछ सालों के लिए बंद हो जाएगा, फिर वापस थोड़ा राइज हो गया, दैट इज नॉट हाउ द प्रोसेस इज, ओके। यूजुअली स्लो मूवमेंट्स ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस होती है, सडन मूवमेंट्स वेरी क्विक एंड एपिसोडिक होती है, एपिसोड मिलते हैं आपको उसके कि ये वोल्केनिक इरप्शन हो गया, 2 दिन हो गए, चलो बस हो गया, फिर नेक्स्ट एपिसोड की और 2-4 साल में वापस इरप्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट, ओके। कभी कभी 10-20 साल, 50-100 साल में भी इरप्ट नहीं होता है, ओके। सो वी आर सीइंग कि वो एपिसोडिक होते हैं इवेंट्स, ऑलराइट। टुमारो हम जो प्रोसेसेस पढ़ेंगे, तो दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू लुक इनटू कि अर्थ का लैंडफॉर्म चेंज होता है, अर्थ का जो फॉर्म है, अर्थ का जो सरफेस है, उसके ऊपर के लैंडफॉर्म्स चेंज होते हैं। वी आर लुकिंग एट द फोर्सेस दैट आर कॉजिंग दीज, द फोर्सेस आर फ्रॉम विद इन द अर्थ। अगर अर्थ का इंटरनल एनर्जी ये कॉज कर रहा है, तो देन वी कॉल देम एंडोजेनिक प्रोसेसेस। अगर अर्थ के एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक factors external to the earth are causing it, like climate or some erosional agents or something, तो फिर हम उसको exogenic processes बुलाएंगे, ओके, ठीक है। People, it's already 2 o'clock, let's stop here, and tomorrow I will continue with this, okay। ये वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस वगैरह करना शुरू करते थे। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस विल बी डन आफ्टर दिस चैप्टर इज ओवर, ओके। एक्सोजेनिक प्रोसेस हम इस चैप्टर में नहीं करते, इस चैप्टर में हम बस एंडोजेनिक कवर करेंगे, ओके। Thank you very much for joining me, and you guys have a great day. Bye.